Hey everyone, welcome back to the channel. And today we are diving into a beautiful and heartwarming short story from class 10 English Kumar Bharti. That is The Thief's Story, which is written by Ruskin Bond. And students, if you are preparing for class 10 board exams and if you want to achieve good marks in English, then you are at the right place. Please take till the end and let's understand the chapter The Thief's Story. So, guys, first? Let's talk something about the author. The author of this story is Ruskin Bond, and Ruskin Bond is one of the India's most beloved and heartwarming, and his stories are very heart-touching stories that often revolve around the nature, people, and everyday life. The thief story is no different. It is also based on the short story which gives a beautiful message and leaves some impression on us. So what's about the story? You are also curious now what is in the story. So I will tell you, the story is just about a thief who is just 15 years old. Yeah, you heard it right. The thief is just 15 years old young boy, and he's very clever, sharp, and how he know how to convince people so that they will come in his trap. And but everything changes in the end when he meet the very beautiful and kind person, that is Anil. So guys, here are only two main characters in this story. The first one is the narrator, that is the thief who is narrating the story, who has told his name as Hari Singh in the story. Actually, he told his name as Hari Singh, and Anil, who is a very kind and simple, honest man, a person for which he writes some articles and earn some money for his living, and he is being stolen by Hari Singh. And what happens next, that will we will see in the story. So students, let's start. I will first read it for you, the first page, and then I will explain you what is actually happening. Okay, and I will always try to explain you in English and Hindi so all can understand. Okay, let's start. तो चलिए अभी शुरू करते हैं. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. So first we will understand these lines. सो इसमें क्या बोलता है, जो नरेटर है द थीफ, वो नरेट कर रहा है कि मैं जब अनिल से मिला तब मेरी एज सिर्फ 15 थी और अनिल की जो एज है वो 24-25 ऐसा कुछ होगा. और जब वो अनिल से मिला तो अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहे थे और वो एक टॉल एंड लीन, मतलब ये टॉल लीन जो है इजी गोइंग, ये नेचर दिया गया है और जो अपीयरेंस है वो अनिल का दिया गया है. इससे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ अनिल. ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल. और अगर अनिल का अपीयरेंस पूछे तो अनिल इज अ टॉल एंड लीन एंड अनिल एज इज 25. ओके, सो यहाँ पे बोलते हैं कि वो एक फेक स्माइल के साथ उसे, मतलब उसके ट्रैप में लेने के लिए जो थीफ है वो अनिल को बोलता है, तुम थोड़ा सा रेसलर जैसा दिखते हो. अनिल उन्हें रिप्लाई देते हुए बोलते हैं कि हाँ, तुम भी थोड़ा सा लगते हो. बट तब थीफ सोचता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे, क्योंकि अनिल थीफ जो है वो एक बहुत ही 15 ईयर का जो बच्चा है वो कैसे ही दिखेगा भला. वो तो एकदम पतला सा, दुबला पतला छोटा लड़का दिख रहा था. तो उसने भी मजाक मजाक में कह दिया अनिल ने, हाँ तुम भी थोड़ा सा लगते हो. उसके बाद उनकी थोड़ी बातचीत हुई रेसलर्स के बारे में, तो कैसे वो लोग लिफ्टिंग करते हैं, एक में को फेंकते हैं, उसके बारे में. उसके बाद अनिल निकल गए
एंड जो हरी सिंह है वो भी उन्हें फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे गया। उसके बाद अनिल अगेन सेड, हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। सो हरी सिंह अनिल से क्या बोलते हैं, उनके एक फेक स्माइल में, मतलब एक अट्रैक्टिव स्माइल में, एक फेक स्माइल जिसे हम बोल सकते हैं कि मैं बहुत सिंसियर हूँ, ऐसे एक स्माइल में वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। सो उस पे रिप्लाई क्या देते हैं अनिल, बट आई कांट पे यू। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। सो आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई मिसजज माई मैन। सो तब हरी सिंह को लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत ही इंसान को चुन लिया है। सो आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी, कैन यू कुक, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। सो वो पूछते हैं रस्की, सॉरी अनिल हरी सिंह से कि क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो, कैन यू कुक। सो उस पे जो थीफ है वो अगेन झूठ बोलता है कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। बट यू इमेजिन 15 ईयर का जो बॉय है, क्या सच में वो खाना बना सकता है? नहीं बना सकता। एक आध ही बच्चा अगर वो बहुत होशियार है या फिर उसको कुकिंग में इंटरेस्ट है, सो ही कैन कुक, ही और शी कैन कुक। बट आप ही अभी 15-16 साल के हो, 10th में। सो क्या आपको भी खाना बनाना आता है? वैसे ही उसको खाना बनाना नहीं आता था, बट तभी भी उसने क्या कहा कि हाँ मैं खाना बना लूंगा। क्योंकि ये जो अनिल है वो उसे पे नहीं कर सकते थे, सिर्फ वो उसे खाना दे सकते थे अगर वो उनके लिए खाना बनाए उसके बदले में। So if you can cook, then maybe I can feed you. He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep in the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he could not help laughing. सो फर्स्ट डे क्या होता है गाइस, जो अनिल है वो उसे रूम दिखाते हैं अपना, जिसका एड्रेस है जमुना स्वीट के ऊपर, ओवर द जमुना स्वीट शॉप। सो और उसे बालकनी दिखाते हैं कि तुम यहाँ पे सो सकते हो। तो उस रात फिर जो हरी सिंह है, जो चोर है, वो खाना बनाता है। तो वो खाना मतलब उसको बनाना ही नहीं आता था, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है। तो अनिल जो है वो कुत्ते को वो खाना दे देते हैं, बट उसे कुछ बोलते नहीं है। और तब जो हरी सिंह है वो एक अपने अपीलिंग स्माइल में, एक ऐसा स्माइल, क्योंकि उसको खुद पे हंसना आ रहा था कि मतलब मुझे खाना बनाना नहीं आता है, बट अनिल ने तब भी उसे कुछ बोला नहीं था। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। पैटेड मी का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? पैटेड मी मतलब अनिल ने हरी सिंह के सिर पे एक जेंटली ऐसा हाथ रखा और बोला कि माइंड मत करो तुम, नेवर माइंड। ही हैड टीच मी टू कुक। उसके बदले में उसे खाना नहीं बनाना आता था, उसने झूठ बोला। फिर भी अनिल ने उसे कुछ कहा नहीं और उसे उसने खाना बनाना भी सिखाया। और उस इतना तो नहीं, उसने उसे खुद का नाम लिखना भी सिखाया, और उसे कह रहा था वो कि हम लोग जल्द ही नंबर भी सीखेंगे, उसे एडिशन कैसे करते हैं, पूरे सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. सो हरी सिंह जो है वो इम्प्रेस हो जाता है कि उसका हाथ का खाना अच्छा नहीं बनता है, तो भी अनिल उसे कुछ कहता नहीं है, बल्कि उसे खाना बनाना भी सिखाता है, उसके साथ ही उसका खुद का नाम लिखना सिखाता है, नंबर सेट करना सिखाता है। और तब हरी सिंह को ऐसा लगता है कि अगर मैं एक एजुकेटेड पर्सन की तरह लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा तो मैं क्या कमाऊंगा या फिर मैं कौन से पोजीशन तक जाऊंगा, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। मतलब वो एक सपने में चले जाता है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about a rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to be mind. So ये लाइन से क्या कहते हैं हरी सिंह कि वो सुबह उठते हैं, फिर सुबह वो चाय बनाते हैं और उसके बाद जो उनका टाइम है वो
दिन में जो एवरीडे थिंग्स, जो डेली नीडी प्रोडक्ट्स लगते हैं, वो लेने के लिए वो चले जाते थे और उसी से वो कुछ प्रॉफिट, मतलब कुछ मनी उससे ही वो कमा लेते थे। जैसे कैसे, अगर कोई सब्जी लाने गए तो 25 रुपीज़ का सब्जी हुआ और वो अनिल को जो है वो 20 बता देते थे। तो ऐसे करके जो हरी सिंह है वो अपना प्रॉफिट डेली का डेली, वो डेली सप्लाईज लाने के चक्कर से ही निकाल लेता था। बट ये जो बात थी वो अनिल को पता थी, बट फिर भी अनिल ने उसे कुछ माइंड नहीं किया था। Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote magazines, a queer way to make a living. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है कि इन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल्स। सो अनिल जो है वो उसका रेगुलर ऐसा कुछ पेमेंट नहीं था, क्योंकि वो जो ये है वो ऑथर, मतलब एक लिखता था और लिखने से उसका जो खर्चा पानी है वो चलता था। सो उसको थोड़े थोड़े पैसे कैसे इरेगुलर इंटरवल्स में मिलते रहते थे। तो जब भी उसको मिले चेक, तो वो उस रात जाके अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता था, पार्टी करता था, और जो पैसे मिले हैं वो कुछ सेव करता था और बाकी पार्टी में उड़ा देता था। One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done any thing in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever made. एक रात क्या होता है कि अनिल जो है, उनका जो बुक है वो पब्लिशर को सेल हो जाता है, बिक जाता है। तो वो कुछ मनी का जो बंडल है वो लेकर घर आते हैं, और वो जो मनी है वो जिस मैट्रेस पे वो सोते थे उसके नीचे रखते हैं, और ये सब जो है वो हरी सिंह देख लेता है। तो बट हरी सिंह जो है वो एकदम ही फ्रीली अनिल के यहाँ पे रहता था, खाता था, जो शॉपिंग करता था उससे कुछ चीटिंग भी करके पैसे लेता था। बट अनिल ने तब भी उस पर ट्रस्ट किया था बहुत, और जो घर की जो चाबियां थी वो भी उसके पास थी। उसको जब बाहर जाना था वो जाता था हरी सिंह, जब आना था तब वो आता था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। सो हरी सिंह के जो करियर है, जो थीफ का जो करियर है, उसमें सबसे ट्रस्टी पर्सन था अनिल, जिससे वो मिला था। तो उसे रॉब करना भी थोड़ा हरी सिंह के लिए डिफिकल्ट जा रहा था कि इतना ट्रस्टिंग पर्सन है तो मैं इसे कैसे रॉब करूं, ऐसे मतलब इससे कैसे चोरी करूं, इसके पैसे कैसे चुराऊं, ऐसे उसका मन कह रहा था। इट्स easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he has been robbed, and that takes all pleasure out of the work. वो कहता है कि एक लालची इंसान को चोरी करना बहुत इजी है, क्योंकि मतलब वो लालची इंसान को हमेशा एक ऐसा रहता है कि मेरे पैसे चोरी नहीं हो जाए या फिर ऐसा। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट एक केयरलेस मैन को जो चोरी करना है वो इजी है, केयरलेस मैन के पास से। बट ये केस जो था अनिल का वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice. So उसके काइंडनेस की वजह से हरी सिंह खुद के मन को ऐसे समझाता है कि नहीं, मेरे को बहुत टाइम हो गया, मैं इससे बाहर निकल चुका हूँ। मतलब मैं जो अभी तक चोरी करता था, मैं उससे दूर हो चुका हूँ। अब मैं वो चोरी नहीं करूँगा। जो मेरा डेली रूटीन चल रहा है, जैसे मैं अनिल के यहाँ पे रह रहा हूँ, उसके लिए खाना बना के खिला, मतलब खा रहा हूँ, वहीं पे रह रहा हूँ, और जो मैं शॉपिंग से कुछ पैसे कमाता हूँ उससे अपना खर्चा पानी मैं चला लूँगा। तो अभी मैं चोरी नहीं करूँगा। ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। बट वो पैसे को देख के हरी सिंह हरी सिंह के मन में भी एक ऐसा ये आ जाता है कि
नहीं कि अगर ये पैसे अगर मैं लेता नहीं भी हूँ तो भी अनिल इसे अपने फ्रेंड्स पे ही वेस्ट कर देगा, उसे पार्टी में ही वो वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल वो मुझे पे नहीं करेगा। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. सो अनिल ने जो पैसे हैं वो मैट्रेस के नीचे रखे थे। और अनिल जब सोया था तो खिड़की से जो है वो मूनलाइट जो है वो अंदर आ रहा था बालकनी से, और वो बेड पे सीधा गिर रहा था मूनलाइट। सो जो हरी सिंह है उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये पैसे चुरा लूंगा। अगर मैं चुराता नहीं भी हूँ तो ये पैसे अनिल अपने फ्रेंड्स नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड्स के ऊपर ही वेस्ट कर देगा और मुझे पे नहीं करेगा, क्योंकि उनका वैसे बोलना हुआ था कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, सिर्फ मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ और रहने के लिए जगह दे सकता हूँ। सो हरी सिंह ने ऐसा सोचा कि अगर मैं पैसे लेता हूँ तो मैं 10:30 एक्सप्रेस जो है लखनऊ को वो मैं पकड़ सकता हूँ। सो वो नीचे बैठ के घुटनों के बल पे क्रेप्ट करके वो बेड के पास जाता है, और तब अनिल जो है वो आराम से सो रहे होते हैं। सो और उनके चेहरे पे कोई भी लाइन नहीं होती है, मतलब कोई वरी नहीं, एकदम वो चिल माइंड से सो रहे होते हैं। उससे ज़्यादा जो मार्क्स है वो हरी के फेस पे रहते हैं, हरी सिंह के। वो क्यों रहते हैं? उसे डर रहता है कि अगर मैं चुरा लूं और इसे पता चला तो क्या होगा। My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. सो गाइज जो हरी सिंह है वो हाथ डालता है मैट्रेस के नीचे, गद्दी के नीचे, पैसे निकालने के लिए। सो उसे कुछ देर में पैसे मिल जाते हैं, और तभी जो है वो अनिल जो है अपना करवट बदल लेता है और जिस डायरेक्शन में हरी सिंह पैसे निकाल रहा होता है उसी तरफ। तो हरी सिंह बहुत जल्दी से वो पैसे निकलता है और रूम के बाहर निकल जाता है। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by string of my pajamas. हरी सिंह रूम के बाहर निकल के दौड़ने लगता है, और जो पैसे का बंडल उसने चुराया होता है वो अपने जो बेल्ट रहता है वहां पे रखता है, उसके पैजामे के धागे स्ट्रिंग को टाई करके। I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. वो कुछ देर वो दौड़ने के बाद वो अपनी जो चाल है वो धीमी करता है और वो पैसे गिनता है कि पैसे कितने हैं। तो काउंट करने के बाद पैसे 600 रुपये होते हैं और 50-50 के नोट्स में, इसलिए वहाँ पे लिखा है 600 रुपीज इन 50s। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। वो सोचता है कि मैं 1 या 2 हफ्ते के लिए एक जो अरबपति है उसके जैसे मैं जीवन बिता सकता हूँ, सिर्फ 1-2 हफ्ते के लिए। उतने ही पैसे उसके पास अवेलेबल थे जितने उसने चुराए थे। When I reached the station, I did not stop at the ticket office क्योंकि I had never bought a ticket in my life. वो जैसे ही स्टेशन पे पहुंचता है, क्योंकि उसे तब 10:30 का जो एक्सप्रेस होता है लखनऊ वो पकड़ना होता है, बट वो टिकट ऑफिस पे रुकता ही नहीं है, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे जाता है। और वो बताता भी है यहाँ पे कि मैंने कभी टिकट मेरे लाइफ में लिया ही नहीं। The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. जब वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है तो जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो जस्ट उसने चलना स्टार्ट किया होता है, लखनऊ एक्सप्रेस ने प्लेटफॉर्म को जो है वो छोड़ना स्टार्ट किया होता है, बट स्पीड उसने पकड़ी नहीं रहती है। अगर हरी सिंह को ट्रेन में जाना रहता तो वो तब भी चढ़ सकता था, बट उसके मन में एक हेजिटेशन होता है, तो वो चांस उसके इससे निकल जाता है। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help.
and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. जब वो ट्रेन निकल जाती है, यहाँ पे डेजर्टेड प्लेटफॉर्म यूज़ किया है क्योंकि जो अनिल है वो अनिल जो है वो एक कोल्ड प्लेस पे रहता था, तो जो प्लेटफॉर्म था उस पे पूरा बर्फ जमा हुआ था, तो वो और रेन भी चालू था, तो वो रेन में वो निकलता है हरी सिंह और बाजार से धीरे धीरे चलते हुए वो कहाँ पहुंचता है वो देखेंगे. इन माई शॉर्ट करियर एज अ thief I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance, but I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. No, not loss for of the money, but for the loss of ट्रस्ट. तो वो बोलता है कि मैंने अपने एक छोटे से चोरी के करियर में इतना तो समझ लिया है कि मैं इंसानों के फेस से उन्हें पढ़ना सीखूं. मतलब फेस रीडिंग उसने सीख लिया था. अगर मैं किसी का कोई चीज चुराता हूँ तो जो लालची व्यक्ति है उसे डर लगेगा, जो जो रिच व्यक्ति है उसे गुस्सा आएगा, जो गरीब व्यक्ति है वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट उसे इतना पता था कि जो अनिल है वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देगा, उसके जो चेहरे पे है सिर्फ एक थोड़ा सा टच रहेगा सैडनेस का, बट मनी के लॉस के लिए नहीं रहेगा, बट जो ट्रस्ट अनिल ने हरी सिंह के ऊपर दिखाया था वो ट्रस्ट उसने लॉस किया, इसलिए उसके चेहरे पे थोड़ा सा सैडनेस होगा. I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly, it was early November, and a little drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my फेस. सो गाइज यहाँ पे जो है कुछ कुछ हिंदी या फिर मराठी जो वर्ड्स है वो यूज़ हुए हैं, जिसे इटैलिक में दिया है, जैसे मैदान, इसके पहले यूज़ हुआ था पैजामाज, बाजार. सो ये एग्जाम्पल्स है गाइड कोड मिक्सिंग के. सो व्हाट इज़ कोड मिक्सिंग? कोड मिक्सिंग एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हिंदी वर्ड्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं. सो इसे कोड मिक्सिंग कहते हैं. इसे मे बी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारा उसमें इसका क्वेश्चन है, आई थिंक सो. सो वहाँ पे ये हमें लिखना है. हाँ, पिक आउट फ्रॉम द स्टोरी 3 to 4 एग्जाम्पल्स ऑफ कोड मिक्सिंग, मतलब इंडियन वर्ड्स विच आर यूज्ड इन इंग्लिश. सो हमने 3 वर्ड्स अब तक देख लिए, बाजार, मैदान एंड पैजामा. यहाँ पे नरेटर बोलते हैं कि जब वो स्टेशन से निकलते हैं और बाजार से चलते चलते वो एक मैदान में पहुंचते हैं और वहाँ पे एक बेंच पे वो बैठते हैं. नाइट जो है वो वहाँ पे बर्फ बहुत था, अर्ली नवंबर का एक टाइम था और थोड़ा सा रेन हो रहा था, जिससे उस जो नरेटर को है उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हुआ, बट उसके बाद ही जोर जोर से बारिश आना स्टार्ट हो गया और उनके जो शर्ट एंड पैजामा है वो भीग गए और उनकी बॉडी को स्टक हो गए. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर. द क्लॉक टावर शोड मिडनाइट. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. सो चलते चलते नरेटर फिर बाजार में पहुंचते हैं और क्लॉक टावर के नीचे बैठते हैं. तब क्लॉक टावर में जो है वो टाइम होता है मिडनाइट का, और जो नरेटर है और जो थीफ है जिसने नोट्स चुराए हैं उसे वो जो नोट्स है उसकी चिंता होती है, क्योंकि जो नोट्स है वो पूरे भीग चुके होते हैं बारिश की वजह से. Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I could not cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अनिल के जो हरी सिंह है उसके मन में ये विचार आता है कि अनिल का जो पैसा है वो मैंने चुरा तो लिया, बट नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल ने मुझे कुछ पैसे दिए होते हैं, मैं सिनेमा जाता, या अनिल ने मुझे कुछ सिखाया होता तो मैं सेंटेंस लिखना सीख जाता, मैं कुछ एजुकेटेड पर्सन के जैसा पढ़ना लिखना सीख जाता, या फिर अभी मैंने पैसे तो चुरा लिए बट मैं अनिल के लिए खाना नहीं बना सकूंगा, मैं पढ़ नहीं सकूंगा.
I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. सो हरी सिंह को एक ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ 600 रुपीज़ है, 600 रुपये है, जिससे मैं 1 या 2 हफ्ते के लिए अच्छे से जी सकूंगा। बट अगर मैंने अनिल के पास रह के एजुकेशन सीख लिया तो मैं लॉन्ग टाइम के लिए और इससे ज़्यादा पैसे मैं कमा सकूंगा अगर मैं लिखना पढ़ना सीख जाता हूँ तो। और मैं एक रिस्पेक्टेड मैन के जैसे बन सकूंगा, एक क्लेवर मैन बन सकूंगा, एजुकेटेड मैन बन सकूंगा। I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something that it than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded midnight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand come up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. वैसे ही इतना सोचने के बाद हरी सिंह जो है वो दौड़ते दौड़ते रूम पे पहुंचता है। और वो फिर उसे ऐसा लगता है कि कुछ चुराना इजी है, और उस किससे इजी है कि जो पैसे उसने चुराए हैं वो वापस करना, वो भी सेम कंडीशन में जैसे उसने चुराए थे, किसी को पता ना चलते हुए। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और वो जाता है तो अनिल की जो ब्रीथ है वो उसके हैंड पे आती है, और वो मैट्रेस के नीचे जो है वो बंडल रखता है नोट्स का। एंड फिर वो भी सो जाता है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल had already met the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो हरी सिंह लेट उठता है, और इसलिए लेट उठता है ताकि उसको लगे कि अनिल मेरे से पहले उठ जाए और चाय खुद के लिए बना ले, और उसे ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ चोरी की हो। सो अनिल उसे उठने के बाद बोलता है कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं तो अभी तुम्हें रेगुलरली पेमेंट मिलेगा। माई स्पिरिट रोज मतलब बिकेम वेरी होपफुल, बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। बट जब वो 50 रुपए जो पे करता है अनिल हरी सिंह को, जो 50 रुपए की नोट देता है, वो अभी भी पूरी गीली होती है, क्योंकि जो वो नाइट में चुराई थी उसने और बारिश आई थी बाजार में, तो वो पूरी गीली हो चुकी होती है नोट, तो वो सूखती नहीं है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। पर फिर भी अनिल को पता चलते हुए भी अनिल बोलता है आज से हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort.